ठीक है। हाँ हेलो। यस सर। ओके, एक्चुअली और सिलेबस तो ऑलरेडी हम लोग देखे हैं हमें अब डिप्लोमा थर्ड सेम का, ठीक है। सिलेबस तो काफ़ी लेंदी है और वेरी शॉर्ट टाइम अनेबल टू, बट वी ट्राई टू लेट माय लिटिल बेस्ट, वी ट्राई टू लिटिल बेस्ट, है ना। जी जी। So let us start the numerical topic. Okay, numerical method. So we share the screen. Um, let us start the numerical method. The first topic is finite differences. Okay, consider the function y equal to fx is evaluated for the equally spaced values x, that is x naught plus h, x naught plus 2h, x naught plus nh, equal to y naught, y1, y2, yn, राइट। इक्वली स्पेस मतलब x1 का वैल्यू क्या है, x नॉट x x नॉट प्लस h, दैट इज द इक्वली स्पेस h. ओके, giving the values of y is equal to y naught, y1, y2 up to yn. To determine the values of fx plus x for some intermediate values of x, the three types of differences are found. That is a forward differences, backward differences, and differences. According to a syllabus, we discuss the forward differences. The differences y1, y0, y2, y1 minus y1, yn minus yn minus 1, when denoted by del y0, del y1, del yn respectively, are called the first forward differences. However, delta, this operator is the first forward differences operator. This operator is the first forward differences operator. The first forward differences are denoted by del yr equal to del yr1 plus 1 plus yr. Similarly, the second forward differences operator defined by here multiply by again del c, right? The del square yr equal to del yr plus 1 minus del yr. In you can write define pth forward differences. That is pth forward. Pth forward means a first difference operator, second forward difference operator, third forward difference up to pth forward differences operator. Forward differences table are shown below. That is values of x. Values of x will have x naught plus x naught plus h, x naught plus 2h, x naught plus 3h, x naught plus 4h, x naught plus 5h. Values of y have y naught, y1, y2, y3, y4, y5. The forward difference operator del y naught. Del y naught means that y1 minus y naught, y1 minus y naught. Are you clear? जिसान हलदर, यस सर। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। समझ में आ रहा है? सर पढ़ा नहीं हूँ सर कुछ भी। ओके, तो नोट्स को एक्चुअली वी शेयर ना, आफ्टर दैट यस सर, कोशिश कर रहा हूँ सर। योर व्हाट्सएप ग्रुप विल हैव ना? यस सर। ओके, योर व्हाट्सएप ग्रुप आई विल शेयर द नोट्स. ओके, यस सर, थैंक यू सर। so fast forward differences operator can be defined del y naught. Del y naught means that y1 minus y naught. And a similar way, second differences operator means that del square y naught can be written as del y1 minus del y naught. And a similar way, third difference operator, fourth difference operator, fifth. Anyone student tell me the del y1 how much? Deepak Kumar Mahato.
दीपक मातो, लिसन। Yes, sir. हाँ दीपक मातो, आर यू लिसन? Yes, sir. हाँ टेल मी del y1 how much? Del y1 how much? Values of del y1 how much? Y1 first. y2 minus y1, right? y2 minus y1. Yes, sir. Del y1. Del y2 how much? Y y3 minus y2, right? Y3 minus Y2. Yes, sir. हाँ. As a similar way, del square y1 how much? Del square y1 how much? Del Y minus. Del y2 minus del y1. Yes, sir. Okay. As a similar way, up to third difference operator, fourth difference operator, fifth difference operator. Fifth difference operator can be written as del to the power 5 y0 is equal to क्या होगा? Del to the power 4 y1 minus del 4 y1. ठीक है? अरे सिमिलरली हायर ऑर्डर सेंट्रल डिफेंस इसको नहीं देखना तुमको, ठीक है ना? There is a forward defense operator that's table we have only for according to your problem, right? Evaluate tan in del of tan inverse x, del of exponential of x log of 2x, del of x square by cos 2x, del square cos 2x, है ना? तो according to first second problem we solve second problem, right? देखो del exponential of x log 2x, we can write x plus h minus this. इधर है कि नहीं है? Anyone student? फास्ट फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर क्या होता है? दैट इज द इक्वल स्पेस ओनली फॉर वन. ये किधर है कि नहीं है? दीपक मातो, पुरेंद्र पांडे, सर एक बार रिपीट कीजिएगा ना. सर रिपीट वंस. हाँ बोलो. सर आई वाज सेइंग रिपीट वंस. देखो फास्ट एक्चुअली इवेलुएट द फास्ट फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर, राइट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज del tan inverse x, del of exponential of x log 2x, del of x square divided cos 2x. So here we solve the second problem. Second problem we have exponential of x log of 2x. इसका हम लोग फास्ट फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर निकालेंगे, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? del फास्ट फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर दैट इज एक्सपोनेंशियल के साथ क्या होगा? x के साथ क्या होगा? x प्लस h माइनस ये होल फंक्शन, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टेबल में देखो, फास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर दिस वन del y0 हाउ मच? y1 माइनस y0. तो y1 का वैल्यू क्या है? x0 प्लस h माइनस y0 का वैल्यू क्या है? x0. तो सिमिलर वे इसका जब वैल्यू निकाल लेंगे फास्ट फॉरवर्ड तो क्या होगा? x प्लस h माइनस दिस. क्लियर है? Yes, sir. ओके आप देखो इसको ब्रेक करेंगे हम लोग. एक्सपोनेंशियल पे x प्लस 2h इसको दिया हुआ है, ब्रेक कर रहे हैं, है ना? इसको ब्रेक करके सॉल्व करके ये सॉल्व करके ये आएगा. सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो.
अरे सिमिलर वे थर्ड प्रॉब्लम देखो, थर्ड प्रॉब्लम x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस दिस, सॉल्व कर दिए इसको तो रिजल्ट तुम्हारा हो गया, ठीक है ना। फोर्थ प्रॉब्लम भी क्या हुआ देखो, डेल स्क्वायर कॉस 2x, ये डेल स्क्वायर मतलब क्या क्या, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। फर्स्ट वी सॉल्व द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल रख दिए, फर्स्ट फॉरवर्ड क्या होगा, x प्लस एच के साथ x माइनस हो गया, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, उसको ब्रेक कर दिए, फिर उसके बाद अगेन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, क्लियर है। यस सर। इसे सॉल्व करोगे तो तुमको रिजल्ट ये मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इवेलुएट डेल स्क्वायर a इंटू बी पर एक्स, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी, मतलब यहाँ पर डिफरेंसिंग क्या आ रहा है, यूनिटी मतलब 1, ठीक है। यहाँ पर h नहीं होगा, h के जगह पर क्या हुआ, h का जो इक्वली स्पेस होता है वो h का वैल्यू क्या हुआ, यूनिटी मतलब 1। देखो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालो, a इंटू बी पर एक्स, ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, डेल ऑफ बी पर एक्स, बी के साथ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 माइनस दिस, तो बी तो पर एक्स हो गया इंटू बी माइनस 1, ठीक है। अगेन डिवाइड करो, ये हो गया, ये माइनस होगा, ठीक है। हियर यहाँ पर माइनस विल हैव, ओके दीपक महतो, Yes, sir. ये Yes, sir. माइनस विल हैव, एक्चुअली माइनस लीव इट, है ना, माइनस यहाँ पर नहीं है, माइनस होगा, है ना। उसके बाद इसको ब्रेक करोगे, नहीं एक्चुअली माइनस नहीं होगा, एक्चुअली ऑल ऑफ यू सी दैट ए कांस्टेंट है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे हम लोग, ये तो फास्ट फॉरवर्ड समझ में आ गया ना, ये क्लियर है। Yes. हाँ यस सर। हाँ, तो Yes, सेकंड sir. जब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग करेंगे तो ए भी कांस्टेंट है, बी माइनस 1 कांस्टेंट है, तो ए इंटू बी माइनस 1 कांस्टेंट बाहर निकल दिए, उसके बाद डेल ऑफ बी टू पर एक्स, तो ये कांस्टेंट रख दें, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो गया, फिर ब्रेक करने के बाद ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यस सर। ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इवैल्यूएट डेल टू द पावर n e टू द पावर x, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी, डेल टू द पावर n मींस n टाइम्स, फर्स्ट फॉरवर्ड को पर निकालो, ये निकलेगा, सेकंड भी निकालोगे तो ये निकलेगा, आप तो कंटिन्यू n टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा, चेक करो क्लियर है कि नहीं है, बोलो। सर एक बार फिर से समझाइए सर। आप और बोलो, इससे ऊपर सर। ये जी सर, बहुत कोशिश के बाद भी समझ में नहीं आया सर। इससे इसको ऊपर बोलते हो, सर। इसको बोलते हो, इससे ऊपर वाला सर। जी सर। ये जी सर। डेल स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, बोलो तो इसको पहले। डेल सेकंड स्क्वायर। सेकंड फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो सेकंड फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ सेकंड फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर, राइट। इसका निकालेंगे a इंटू बी टू द पावर x, तो फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड, आफ्टर दैट ना सेकंड फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर निकालोगे इसका, तो क्या a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकालो, उसे डेल क्या है, डेल इंटू बी टू पर एक्स, डेल इंटू बी टू पर एक्स।
अब इसका फास्ट फॉरवर्ड, ये तो कांस्टेंट बाहर रख दो, इसको फास्ट फॉरवर्ड निकालोगे तो क्या होगा, बी टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस माइनस बी टू द पावर एक्स। क्यों, यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी लिखा हुआ है, ठीक है, यूनिटी मतलब 1, तो बी टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस बी टू द पावर एक्स, ए इंटू बी टू द पावर एक्स इंटू बी माइनस 1। अब क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस सर, वो सर जो स्टार्टिंग में टेबल दिया था सर, उसको याद करना होगा सर। टेबल में बिल्कुल, हाँ, टेबल को याद रखना पड़ेगा, नहीं टेबल को समझना है, ठीक है। एक्चुअली ये नहीं, ये ठीक है, जी सर। ये फास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का ये है इंटरवल जो है, सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक। आप देखो Yes, sir. इसको हम लोग लिखे डेल वाई नॉट, जो लिखा है डेल वाई नॉट इज द सेंट्रल पोजीशन ऑफ y1 माइनस वाई नॉट। देखो इसका लाइन में नहीं है, इसका लाइन में नहीं है, ये क्या है, सेंट्रल में है। देखो सेंट्रल में इसलिए देखे हैं कि डेल वाई नॉट मीनिंग जो हो गया, इसका मीनिंग है कि y1 माइनस वाई नॉट, ठीक है। अच्छा। अब y1 माइनस वाई नॉट, y1 का वैल्यू क्या है, x नॉट प्लस एच, और y नॉट का वैल्यू क्या है, x नॉट। यस सर। डेल वाई नॉट का वैल्यू क्या, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओनली फॉर एच होगा। यस सर, होगा, वो बोलो। नोट यस सर। जी सर, समझ गया सर। हाँ, इसी प्रकार उसको सॉल्व किया हुआ है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। यस सर। इसको सॉल्व कर किया हुआ है उसी प्रकार, ठीक है। इसको देख लोगे, प्रॉब्लम देखोगे, प्रॉब्लम किया हुआ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसको समझोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अदर डिफेंस ऑपरेटर, ठीक है। आफ्टर दैट फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर, अदर डिफेंस ऑपरेटर मतलब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफेंस ऑपरेटर डिस्कस कर लिया हम लोग, ठीक है। बैकवर्ड डिफेंस सेकंड होता है, सेंट्रल डिफेंस तुम लोग का नहीं है, ठीक है। बिसाइड दीज थ्री ऑपरेटर, इसके बाद दीज थ्री ऑपरेटर दैट इज ई म्यू व्हिच आर क्या, दैट इज शिफ्ट ऑपरेटर, दैट इज शिफ्ट ऑपरेटर कैन बी रिटन बाय द shift operator can be denoted by capital E, right? Shift operator can be denoted by capital E. This operator is operation of increasing the argument x by h. इसका मतलब क्या हुआ, बोलो तो। आर्गुमेंट जो है x जो वेरिएबल दिया हुआ है उसमें h इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये, मतलब e ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस एच हो जाएगा, इंक्रीजिंग द आर्गुमेंट x बाई एच, h इंक्रीमेंट कर गया, ये देखिए। ई स्क्वायर मतलब सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट, x प्लस 2h, ई क्यू दैट इज 3 टाइम्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ आर्गुमेंट x प्लस 3h एटसेट्रा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। बोलो, एनीवन स्टूडेंट। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर। डिस्काउंट हो जाए, आप बोलो, समझ में आ रहा है। शिफ्ट ऑपरेटर मतलब क्या, दिस ऑपरेटर इज द ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग द आर्गुमेंट x बाय h so that e of fx can be written as fx plus h, e square fx is equal to fx plus 2h, e q fx equal to fx plus 3h etc. किधर है, बोलो। एनीवन स्टूडेंट, दीपक महतो, पुलना पांडे, सुदीप्त, किधर है कि नहीं है, हाँ। सूरज कुमार, बोलो। Yes, sir.
राजकुमार Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. The inverse operator e के ऊपर -1, inverse operator e के ऊपर -1 is defined by e inverse fx x minus I, that is inverse मतलब क्या हुआ, डिक्रीज ऑफ आर्गुमेंट बाय x, x में तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है h. If yx is the function fx, then e yx equal to yx plus h, inverse yx equal to yx minus h, where n may be real number. Averaging operator mu can be denoted by independent is regarded as the fundamental operator. ठीक है, ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ये क्या हो गया, एवरेजिंग ऑपरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पी, ई के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, डेल, रिलेशन क्या है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, दैट इज ई -1, ये क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कैन बी राइट इन द शिफ्ट ऑपरेटर, दैट इज 1 माइनस ई के पावर -1, ये क्या है, डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर. सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, दैट इज ई के पावर हाफ माइनस ई के पावर -हाफ, ये क्या है, एवरेजिंग ऑपरेटर. एवरेजिंग ऑपरेटर कैन बी राइट इन द शिफ्ट ऑपरेटर, दैट इज 1/2 इंटू एक्सपोनेंस ई के पावर हाफ प्लस ई के पावर -हाफ. ठीक है, आप बोलो, एनीवन स्टूडेंट? हेलो दीपक, कुलदार, पुरंदर, देवाशीष, Yes, sir. समझ में आ रहा है? मैं कुछ पूछना तो बोलो. रिलेशन फिर से बता दीजिए. रिलेशन को तुम लोग याद रखना पड़ेगा. एक्चुअली से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को शिफ्ट ऑपरेटर में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, और इसका सारा प्रूफ भी किया हुआ है. अगर प्रूफ देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. ठीक है ना, दैट इज, देखो ये क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या लिखेंगे, वाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स. ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर में बोलो तो ई ऑफ वाई एक्स हो जाएगा माइनस वाई एक्स. आप बोलो सर ई वाई एक्स कैसे होगा एक्स प्लस एच, ये दिखाओ डेफिनेशन, देखो देखो डेफिनेशन देखो, ई वाई एक्स, ई वाई एक्स देखो है ना, ई वाई एक्स क्या, वाई एक्स प्लस एच है कि नहीं है. Yes, sir. तो इसी प्रकार ई माइनस वन कॉमन ले लिए, वाई एक्स हो गया, तो तुम्हारा सिंबॉलिक रिलेशन जो है डेल इक्वल टू ई माइनस वन प्रूव हो गया, है ना. उसी बैकवर्ड भी हो जाएगा, बैकवर्ड भी हो जाएगा, सारा प्रूफ किया हुआ, देख के समझ में आ जाएगा, है ना. अब प्रॉब्लम देखो दिया हुआ है ना, प्रॉब्लम को समझोगे. सेकंड प्रॉब्लम देखो क्या है, देखो सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, सेकंड प्रॉब्लम ये दिया हुआ है ना, सेकंड प्रॉब्लम. Yes, sir. इसको हम लोग 2 प्लस डेल प्रूव करेंगे, 2 प्लस डेल प्रूव करेंगे, है ना. तो कैसे होगा बोलो,
देखो सेकंड प्रॉब्लम ये तो लिख दिए एज गिवन क्वेश्चन। बोलो Yes, sir. इसका 1+del का मतलब क्या होगा बोलो तो। 1+del का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर आओ। 1+del 1+del क्या दिया? 1+del इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। Yes, sir. ठीक, तो उसी प्रकार देखो यहाँ पुट कर दिए। यहाँ पुट कर दिए, मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा Yes. रिलेशन। बोलो आ गया? हाँ हेलो, बाकी स्टूडेंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो दीपक महतो, हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ना तुम लोग भाग गए सब कोई। पार्टिसिपेंट घट। नहीं आ हाँ रहा। क्या बोल रहे हो? हेलो बोलो। हेलो, कुछ बोल नहीं रहे तुम लोग, क्या बात है? जिशान हैदर, वीर कुमार, संदीप, दीपक, पुरंदर पांडे, शिवम, No problem, Maharaj.
हाँ, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बोल रहे बोलो, समझ नहीं आ रहा तो फिर से समझाएंगे। हेलो, यस सर। हाँ बोलो ना, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर बार बार। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो बाकी चीज समझ में आया कि नहीं जो समझाया अभी तक? हाँ, हेलो, हेलो, दीपक महतो, यस सर। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं समझे कुछ भी? नो सर। कहाँ पर नहीं समझे बोलो? हम्म, रिलेशन के बाद सर वही समझ में नहीं आ रहा सर। रिलेशन से रिलेशन के बाद रिलेशन जो दिया हुआ, रिलेशन तो दिया हुआ ठीक है, एक्चुअली जब प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो रिलेशन को रिलेशन से सॉल्व करेंगे ना। यस सर। प्रॉब्लम किया हुआ है, ठीक है, सॉल्व किया हुआ है, इसको देखोगे ठीक से, रिलेशन को सॉल्व करोगे रिलेशन से ही, ठीक है। जैसे कि कोई भी थ्योरी को हम प्रूव करेंगे तो थ्योरी को प्रूव कैसे करेंगे? थ्योरी को थ्योरी से कई स्टेटमेंट से प्रूव होता है, ठीक है। अब रिलेशन को जो प्रूव कर रहे हैं तो रिलेशन को रिलेशन के थ्रू से प्रूव हो रहा है, समझ में रहा ना, सारा नोट्स में किया हुआ है। यस सर। यस सर। पढ़ोगे ठीक से देखोगे ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को ये सब तो सर हम करेंगे। सारी चीज को भेज देंगे, समझ में आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है सर। ठीक है। ये तो अभी का थर्ड टॉपिक, इंटरपोलेशन आ जाओ। थर्ड टॉपिक इंटरपोलेशन, नेक्स्ट टॉपिक, consider the following function y is equal to fx, right, for the set of values of x, ठीक है। x को हम लोग क्या दिया हुआ है, x0 प्लस x1 x2 अप टू xn, y0 को हम लोग क्या, y0 y2 अप टू yn, then the process of finding the values of y corresponding to the any values of x equal to xi between x0 प्लस xn, माने xi का जो वैल्यू होगा वो x0 और xn के बीच में होगा, तो इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। और xi के वैल्यू इज आउटसाइड द रेंज हो जाएगा, x0 और xn के आउटसाइड द रेंज, देन इट इज कॉल्ड इन एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, according to your syllabus we discuss, let the function y is equal to fx take the values y0 y1 up to yn corresponding to the values x0 plus x2 plus x1 plus 2y up to x. Suppose it is required to evaluate fx for x equal to x1 plus ph, where p is any real number, for any real p number such we define capital E such that e to the power p fx, e to the power p fx, how much, f x plus ph, शिफ्ट ऑपरेटर बाय शिफ्ट ऑपरेटर, देखो दीपक, यस सर। बाय शिफ्ट ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल तो बार p मतलब e to the power p fx कैन बी टेन एज f x plus ph, ये बाय शिफ्ट ऑपरेटर, तो yp को हम लोग क्या लिखेंगे, yp इज इक्वल टू f x1 plus ph, इसको बाय शिफ्ट ऑपरेटर में क्या लिखेंगे, e to the power p बाहर हो जाएगा, फंक्शंस ऑफ x0, फंक्शंस ऑफ x0 का वैल्यू क्या है, y0 दिया हुआ है, यस सर। y इज इक्वल टू fx ना, यस सर। वाई सर। y इक्वल टू fx, ठीक है, fx0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y0 हो जाएगा, तो यहाँ y0 हो गया। अब इसको हम e के पावर p को हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में लिख दिए, 1 प्लस डेल के पावर p, अब इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में ब्रेक कर दो, 1 प्लस np इंटू n फैक्टोरियल टू स्क्वायर, है ना, बाइनोमियल थ्योरम ब्रेक कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हुआ, दिस फॉर्मूला इज interpolating the values of y near the being of the set of the tabulated values of y, ठीक है।
ये न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हो गया, ठीक है। न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला it is similar way Newton's backward interpolation formula now. Let the function y equal to f(x), take the values of y naught का value दिया हुआ है, corresponding to the values x का value भी दिया हुआ है। Suppose it is required to evaluate fx is equal to fx for x equal to xn plus ph। अब न्यूटन्स बैकवर्ड में जब क्या होता है, बैकवर्ड के लिए x इक्वल टू xn प्लस ph, ठीक है। आप फॉरवर्ड में क्या होता है, एक्स नॉट से स्टार्ट होता है, फॉरवर्ड में एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच। बैकवर्ड में क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच। वाई पी यानी रियल नंबर, सिमिलर है वाई पी लिखे इस तरह से, ये भी लिख दिए। इसको देखो शिफ्ट को हम लोग बैकवर्ड में लिख दिए फॉर्मूला को, ये शिफ्ट ऑपरेटर ई के बाद पी जो है बैकवर्ड में लिख दिए इस तरह से, ये होगा। इसको बाइनरी थ्योरम ब्रेक कर दो और सॉल्व कर दोगे तो न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। It is called Newton's backward interpolation formula containing yn and backward difference of yn. This formula is used for interpolating the values of yn y near the end of the set of tabulated values and also the extrapolating values of y. Find the cubic polynomial which is the following values। देखो इसको निकालना है हमको, एक्चुअली क्वेश्चन दिया हुआ है। हेलो कुछ ना समझ में आ रहा है।
हम थोड़ी देर में फोन पढ़ा रहे अभी। हेलो अभी समझ में आ रहा है। हेलो 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 Yes, sir. अब देखो डिफरेंस टेबल इज गिवन। एक्स का वैल्यू क्या देखो देखो दिया, ध्यान से देखो 0 1 2 3 है। एफ एक्स वैल्यू क्या दिया 1 2 1 10, ठीक है, एज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डेल ऑफ एफ एक्स दैट इज द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। 2 माइनस 1 क्या हुआ 1 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, 1 क्या 9 हो गया। डेल स्क्वायर एफ एक्स 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, 9 माइनस 1 क्या होगा 10 हो जाएगी। और डेल क्यू थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इतना माइनस इतना कितना 12 होगा। Yes, sir. उसी प्रकार यहाँ एक्स नॉट का वैल्यू क्या लेंगे, एक्स नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। Yes, sir. और पी का वैल्यू क्या होगा एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है। तो एक्स के वैल्यू Yes, sir. हो गया, एक्स नॉट का वैल्यू 0 हो गया, एक्स का वैल्यू क्या 1 होगा, क्यों क्योंकि 0 1 2 डिफरेंसिंग इक्वल स्पेस क्या है 1 है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया Yes, sir. 1। 1. न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के फार्मूला क्या हुआ, एफ एक्स का फार्मूला पूरा लिखो, पूरा लिख दो इसको, जब फार्मूला ड्राइव किए हैं पीछे। अब पी का वैल्यू जो है, पी का वैल्यू क्या हो गया एक्स हो गया, पी का वैल्यू सब पूरा एक्स पुट कर दो, तो दैट इज द योर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है ना। और Yes, sir. डेल एफ एक्स नॉट, डेल एफ एक्स नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो, डेल एफ एक्स नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल एफ एक्स नॉट 1। यहाँ डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -2, देखो -2 लिखा हुआ है। या डेल क्यू एफ एक्स नॉट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ 12 लिखा हुआ है, देखो टेबल में देखो ये 12 है। ये क्या इसका वैल्यू डेल एफ एक्स नॉट ये वाई नॉट हो गया, ये डेल एफ एक्स नॉट वैल्यू हो गया डेल एफ एक्स, ठीक है ना। इसका पॉलिनोमियल तो निकाल गया। अब उसके बाद टू रिक्वायर द पॉलिनोमियल टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ f4, f4 निकालने बोल रहा है। तो वी टेक एक्शन, f4 कहाँ होगा देखो तो, f4 मतलब आउटसाइड द टेबल, 3 के बाद 4 आएगा, ठीक है ना, 3 के बाद 4 आएगा, तो क्या जाएगा बोलो तो एक्शन हो गया 3 हो गया, और x का वैल्यू क्या दिया हुआ 4, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस एक्शन बाई h 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फॉर्मूला लिखो
सॉल्व कर दोगे तो ये तुम्हारा आएगा रिजल्ट। ये बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला ले, देखो चेक करो। ये F4 निकालने बोल रहा है, F4 मतलब बैकवर्ड, ठीक है। तो बैकवर्ड का फॉर्मूला लिख दो, बैकवर्ड फॉर्मूला का जो समझ में आ रहा है, बोलो। एनीवन स्टूडेंट? दीपक मातो, F4 इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना। न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिखा हुआ है सारा। F3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? F3 का वैल्यू देखो, चेक करो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। F3 का वैल्यू F3 10, ठीक है, 10 या क्या लिखा हुआ है देखो, डेर F3 बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर F3 बैकवर्ड, इसका वैल्यू क्या लिखा हुआ 9। 9 में देखो कहाँ है बैकवर्ड, मतलब क्या 9 मतलब ये हो जाएगा 9, उसका बैकवर्ड में ये होगा, ये होगा। तो सारा वैल्यू लिखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, तो तुमको न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला 41 रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है कि नहीं, बोलो। किसी को समझ में दिक्कत है? दीपक कुमार मातो, एनीवन स्टूडेंट? बोलो। हेलो दीपक, हेलो। यस सर। तुम लोग क्या कुछ बोल नहीं रहा, क्या वो चुपचाप हो गए? यस सर। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? सर ये फॉर्मूला सर कहाँ से? सर फॉर्मूला सर कहाँ से है सर? हमने तो ड्राइव कर दिए ना, देखो F4 जो शिफ्ट ऑपरेटर है ना पढ़ाए ना, उसी से तो ड्राइव हो रहा है। न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, सारा फॉर्मूला तो ड्राइव कर दिए। इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यस सर। ये क्या शिफ्ट ऑपरेटर से है ना,
Yes, sir. ये क्या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर को बैकवर्ड में लिखे हैं, ठीक है। अब बोलो। तुम क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? हेलो हेलो दीपक महतो, Yes, sir. क्लियर है ना? इसको पढ़ोगे तुम व्हाट्सएप में मेरे, Hmm. ठीक है। थर्ड नोट्स का अपलोड कर देते हैं अभी, ठीक है। So notes. हाँ बोलो। Yes, sir. ये भी है न्यूमेरिकल का पूरा Notes, sir, है दे. हाँ क्या बोले? Notes, sir, भेज दीजिएगा. दे. नहीं Notes, sir, भेजे? भेज दीजिएगा, sir. तो व्हाट्सएप में मेरे को ज्वाइन करो, हम भेज देते हैं। तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप है ना? ओके सर, बोल दें सर को हाँ ज्वाइन करवा दे। Yes, sir. ज्वाइन करवाओ, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराओ। मिल गया व्हाट्सएप नंबर, मिल गया एवरीवन? Everyone, WhatsApp number can get by message. हेलो दीपक, Yes, sir. व्हाट्सएप नंबर मिल गया? Yes, sir. व्हाट्सएप नंबर मिला कि नहीं मिला? Yes, sir, मिल गया, sir. ओके, तो क्लास का टाइमिंग हो गया ना?